یہ وہ ہیں اس کے ریونیو ڈپارٹمنٹ، شاید آج کل کمشنر ہیں ان کا، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر آ گئے۔ جب کلسٹر بنائے گئے تو اس وقت ایک سوال اٹھا کہ جی شاید یہ فیک یا یہ گوسٹ ٹریننگ سینٹر ہیں۔ کسی نے یونیسیف میں، آپ جب اوپر جائیں گے تو جیسے جیسے اوپر جائیں گے ایسے ایسے حاسدین بھی بڑھیں گے۔ سب نے سوچا کہ نجم صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب نئی نئی پالیسیاں نہیں آئیں گی، یہ نیا کام نہیں ہوگا۔ میں پیک میں آ گیا تو پھر ان کے لیے ایک مصیبت آ گئی کہ سارے میں ڈی اوز کو اور سب کو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو میں نے بلانا، میٹنگیں لینی، تو میں پھر افسر کا افسر رہا۔ جب میں نے کلسٹر سے بنائے اور ٹریننگ سٹارٹ کی، ان کے لیے مینول تیار کیے اور اس میں سائنس، میتھ اور انگلش کو ہم نے فوکس کیا، تو اس کے لیے ماسٹر ٹرینر بنائے، ان کے لیے ان کو کلسٹر میں بھیجا، ڈی ٹی ایز کو تیار کیا۔ تو وہ کسی نے یونیسیف میں کان میں ڈال دیا یا سیکریٹریٹ ڈال دیا، جی یہ تو گوسٹ ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس میں یاسر پیرزادہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، یونیسیف کے لوگ بھی شامل تھے۔ وہ چارٹ رکھا گیا کہ یہ سینٹر چل رہے ہیں۔ فوکس ہم نے کیا راجن پور، رحیم یار خان، مظفر گڑھ کے ایریے کو، پہلے مرلے میں۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی ہمیں چند سینٹر دیکھ رہے ہیں تو رحیم یار خان چلا جائے۔ ہم رحیم یار خان چلے گئے۔ صبح ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فلاں فلاں رحیم یار خان کے سینٹر دیکھیں گے۔ صبح ناشتہ جب کیا تو ناشتہ کرتے ہی ساری ٹیم نے کہا جی ہم نے تو رحیم یار خان دیکھنا ہی نہیں، راجن پور چلتے ہیں۔ میں نے کہا راجن پور چلتے رہتے۔ انہوں نے انگلی رکھ دی کہ اس جگہ یہ سینٹر دیکھنا ہے۔ یہ موبائل کی بیماری نہیں تھی بھی جس کو میں اطلاع دوں، ریموٹ ایریا تھا، راجن پور تھا۔ ہم کشمور کے راستے راجن پور اس علاقے میں آ گئے۔ 3 گھنٹے ہمارا سفر میں گزرا، لیکن کیونکہ صبح صبح ناشتہ کیا ہوا تھا، طے تھا، ہم وقت پہ پہنچ گئے۔ تو وہ بھی حیران ہو گئے بھی ٹیم ساری اچانک کیسے آ گئی۔ جس سکول میں وہ کلسٹر سینٹر چل رہا تھا، اس ہیڈ ماسٹر کو ہم نے لیا تو 40 ٹیچرز کی پریزنس وہاں چاہیے تھی۔ اس نے ان میں کسی کو ایڈریس نہیں کیا، ہیڈ ماسٹر نے مجھے کہتا ہے نجم صاحب 40 کے 40 گن لیں جا کے، ایک بھی بندہ غیر حاضر نہیں۔ بڑی بات ہے۔ اور سب ٹریننگ لے رہے ہیں۔ جب ہم اس جگہ گئے، اس کمرے میں جس میں ان کی ٹریننگ چل رہی تھی، چارٹ لگے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، یونیسیف نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر وہ نافذ کیا۔ اس کے بعد صاف ظاہر ہے میں ایز اے کنسلٹنٹ وہاں رہا۔ جب پھر زیادہ بیوروکریٹس آ گئے تو پھر میں نے کہا نہیں، اب میری ضرورت ختم ہو گئی۔ میرا کام تھا اس اسکیم کو بنانا، چلانا۔ ڈاکٹر رخسانہ ضیاء نے کہا نجم صاحب نہیں، میں نے کہا نہیں، اب میرا موڈ نہیں ہے، میری ضرورت اتنی نہیں ہے، میرے بچے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ذمہ دار میں آدمی، میں کس مصیبت میں پڑا رہوں بھی، اب ریٹائرمنٹ کے بعد چلتا ہی رہوں۔ آپ نے بہت ساری کنٹریز کو وزٹ کی ہے، نظام تعلیم کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ملک کا نظام تعلیم جو نا وہ بہت بہتر یا سب سے بہتر ہے؟
फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इतना तो नहीं घूमा मुल्कों में, लेकिन एक तो मैंने अमेरिका में स्कूल और यूनिवर्सिटीज देखी। अब साफ ज़ाहिर है कि दो अलग अलग सोचें आई। जी बिल्कुल। लेकिन अगर निज़ाम को देखा जाए तो फिनलैंड टॉप पे है। बच्चे की इम्पोर्टेंस और बच्चे की जो ग्रूमिंग है वो उनके यहाँ खत्म है। हमारे यहाँ बीमारी ये है कि प्रेप में स्टार्ट कर दो, बच्चा अभी बोलने के काबिल नहीं होता, माँ कहती पढ़ जाए बस, अभी ये पीएचडी कर जाए। ऐसे ही है। उसके खेलने का वक्त भी हमने छीन लिया। जी बिल्कुल। अमेरिका में मैंने एक स्कूल देखा, गालबन सैन डेग्यू था, और उसमें खबरो नज़र में उन्होंने उर्दू का जो है मैगजीन, उसमें वो तस्वीर और वो चीज भी शाया की जो बात थी। हम गए, 14 आदमियों का ग्रुप था, 9 खवातीन थी, 5 हम आदमी थे, पूरे पाकिस्तान से गए। तो एक खातून एक बच्ची को सहला रही थी, सहलाने से मुराद है उसके सर पे पीछे आगे हाथ फेर रही, और उसे बार बार कह रही थी आई शैल गिव यू कुकीज। ये कोई 10 बजे का टाइम होगा। गेट पे एक और ने हमें रिसीव किया, हम स्कूल में गए, स्कूल को विजिट किया, तो उन्होंने बताया एट लीस्ट 17 लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे इस स्कूल में आते हैं। अरबिक, उर्दू, मैक्सिकन, चाइनीज, ये बच्चे आते हैं। वो विजिट कर रहे थे तो अरबी के जो खानदान के बच्चे थे वो कुछ 6-7 थे और वो अरबी पढ़ा रही थी। उन्होंने कहा कि हम उनकी जुबान को ही बुनियादी लिहाज से पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी जुबान को ही पढ़ाते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश में लाते हैं। हम कहते हैं हमारा बच्चा बुनियादी लिहाज से जो ठेठ पंजाबी बोल रहा है वो उर्दू भी बोले, वो अंग्रेजी भी बोले, वो ये करे। निजाम इस्तवार होता है कॉन्सेप्ट पे, आपके तसव्वुर पे, आपकी सोच पे कि कौमी सोच क्या है। निजाम इस्तवार होता है असातिज़ा पे, निजाम इस्तवार होता है असातिज़ा के एहतराम पे। ना हम मदरसे के असातिज़ा का एहतराम करते हैं, ना हम स्कूल टीचर का एहतराम करते हैं, ना उनके जो बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए वो नहीं देते। प्राइवेट स्कूल जो एलीट क्लास का मैं फिर जिक्र करूंगा, जो इस्तेसाल असातिज़ा का होता है उनकी सैलरीज के एतबार से, वो क्यों छोड़ के आगे गवर्नमेंट स्कूलों में चली जाती हैं टीचर्स, उनको वहां ज्यादा चार्म नजर आता है। तो ये निज़ाम तालीम के लिए जब तक एक बाकायदा थिंक टैंक नहीं बनाया जाएगा, उसमें गौर फिक्र नए असातिज़ा पुराने असातिज़ा मिल बैठेंगे। यहां मैं टच करूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है बाकायदा एक एक्ट के तहत बना है, उसका अपना परव्यू है। लेकिन जब मैं डीपीआई पंजाब था तो गवर्नमेंट ने टेक्स्ट बुक बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए पहली जमात का कायदा ले लिया था, और मैं बतौर डीपीआई था और मुझे दिया था कि आप कायदा लिखिए। जब मैंने कायदा तैयार करना शुरू किया तो आप हैरान होंगे, मैं गोट में दूर दराज प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा के पास गया, मैंने सिखों के कायदे भी पढ़े, फिर मैंने वो कायदा तैयार किया, उस पर फिर नाम नहीं प्रिंट हुआ, प्रिंट ये हुआ तैयार करदा डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री एजुकेशन पंजाब, इसलिए कि मैं रॉयल्टी क्लेम नहीं करना चाहता था। इशू ये है कि हमने अपने असल को
रोल दिया है, गर्दालूद कर दिया है। ए हुकूमत आए, बी आए, सी आए, प्रायोरिटी अपने बच्चे को रखें। जो ट्रेजेडी हम सैलाब की गुजर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही और टेलीविजन पर एक ही रील चलती रही, फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। अपील करते कि लोग मैदान में निकलें, असल भाव में चीज बेचें, लोग अपनी घर की ज्यादा जरूरियात की चीजें, कपड़े लत्ते, पैसे वो सैलाब ज़दगान के लिए जमा करें। हम करते रहे, पहले भी सैलाब आया था, मैं भी बेल बॉटम पेंट पहन कर सैलाब ज़दगान को चीजें देने अपने ग्रुप के साथ जाता था। तो अब वो बेहिस हो गए हैं, हमारे बयानात बेहिस हो गए हैं। तो इसलिए हमारा निजाम बुनियादी लिहाज से दीन पर इस्तवार करते हुए जदीद दौर की तरफ जाना चाहिए। हमारे बच्चों को कंपेयर दुनिया में जाना चाहिए। हम दुनिया से 1000 साल पीछे चले गए। मैं डरता हूं इस बात से कि यूनिवर्सिटी का आप चक्कर लगा लें, लड़कियां बैठी हुई हैं नीचे, मोबाइल यूज कर रही हैं, लड़के यूज कर रहे हैं। उनमें कितने लोग हैं जो असल तालीम हासिल करके आगे निकल रहे हैं, और कितने बेबहरा हो रहे हैं, और कितने इखलाक से आरी हो रहे हैं। एहसास तक नहीं है किस लिए ये वतन बना था, इस पर गौर करना चाहिए। आज सर से बातें करते हुए और मुझे भी यही फील हो रहा है कि काश मैं भी एक टीचर होता। सर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं पैगाम या मैसेज दें। यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, समर वेकेशन सब में होती है। इस समर वेकेशन को इस तरह यूटिलाइज करें, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट इस तरह तरतीब दे कि वो बाकायदा तौर पर वो बच्चों को प्रोजेक्ट इस तरह दे कि तुमने फील्ड में निकलना है, तुमने इन्वायरमेंट को इस तरह बेहतर बनाना है, तुमने बच्चों को जो गांव गोठ में है इस तरह तालीम देनी है, इस तरह साइंस सब्जेक्ट्स को लेना है, इस तरह आपने मैथ को लेना है, इस तरह आपने इंग्लिश को लेना है। एकेडमीज में मत भेजें, उनके बजाय वो निकलें वॉलंटियर्स, और लाजमी कर दे कि यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को, वो लड़के जो हैं लड़कियां पढ़ाएंगे तो डिग्री मिलेगी। और उनके लिए ये है कि वो ये समझें कि कौम को किस तरह उठाना है। उनके लिए ये है कि उनके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए कि मैंने अपनी कौम को किस तरह बनाना है। आखिर पे इसके साथ जरूर शेयर करूंगा, ये एक रिपोर्ट है स्कूल के विजिट की, 1936 भी है, 1935 भी है। एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल फतेहजंग गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहजंग का स्कूल देखता है, स्कूल देखते हुए रिपोर्ट लिखता है कि बच्चों ने ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए इतना डोनेशन जमा किया, इतने पैसे आए, इतने आने आए, इतना हुआ, इतना हुआ, ये इस तरह आर्मी को गया, ये इस तरह गया, फलां जगह यूज हुआ, ये फलां जगह यूज हुआ, और अभी गवर्नमेंट के स्कूल के फंड में 2 आने 3 पैसे पड़े हुए हैं। पैसे पैसे का हिसाब। नौजवानों को यह है कि वो दयानतदारी को इख्तियार करें। अगर बड़ी उम्र के बहक गए हैं और उन्होंने रहनुमाई नहीं की, उनको भी अपने साथ मिलाएं, उनसे दूरी इख्तियार ना करें। वालिदैन के साथ मिल बैठें कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, बुजुर्गों की महफिल में बैठें, उनकी सब बात शेयर करें। सिर्फ मोबाइल पर ही बिजी ना हो जाए, उनके साथ एक लाइफ को शेयर करें। वो उनके अंदर कोई तहरीक होगी तो आए ना। आप उस्तादों को भी चाहिए कि वो तहरीक पैदा करें और हमारे नौजवान जो हैं वो सीधे रास्ते पे आ जाएं। हम बहुत दूर निकल गए अपने पाकिस्तान के असल